Bismillahirrahmanirrahim. Class 6, welcome in lecture number 11 of this course. In today's lecture, we will learn about a story that is Union is Strength. Once upon a time, there was a farmer. He was very old. He lived in a jungle with his 3 sons. He was not happy with his sons because they were quarreling all the time. After a few days, the farmer thought a trick. He went to the jungle and then he collected some straws from the jungle and called all his sons. When all the boys came, he started to break the straws one by one. The farmer and his sons saw that every straw was so weak that it broke down very easily. Now the farmer, after doing this act, he gave his first advice to his sons. He told them that if the persons or individuals are not united, it is very easy to break them. So the boys thought over it and they learned a very good lesson from the advice of their father. After some days, the farmer again went to the jungle. Again he collected the straws and this time he made a bundle of those straws and tied the bundle with a thread. Again he called all his 3 sons and before them he tried to break the bundle of straws, but he was unable to break the bundle. This time the farmer gave another advice to his 3 sons. He said that when you are united, you are the winners, and if you are not united, the enemy will be successful, so do not lose your strength. Dear students, same is the case with the nations. If the nations are not united, if the individuals of the nation are not united, then they become weaker. They become weaker enough and the enemy take advantage of it and the nations, they disappear or vanished from the map of the world. So at the end of the story, we can learn a very good lesson from this story, that is the union is strength. So the farmer had given a lesson by breaking the straws in front of his sons. The lesson was about the union, the unity. So he had given the lesson that you should be united, and we can conclude this story as with the moral as union is strength. Now come towards the second part of the lecture. In the second part of the lecture, we can solve the exercise of the chapter The Daisy. You have learned the poem Daisy with me in the last lectures. I have provided the solution of the exercises that was given on the page number 33 and 34.
So this exercise solution is given on the page number 34. स्टूडेंट्स आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे आपका जो है एक्सरसाइज का ऑप्शन डी दिया हुआ है, जिसमें मल्टीपल ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ऑपोजिट वर्ड्स को इसमें लगाना है। अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका आपने उल्ट लफ्ज़ यहाँ पे लगाना है। ठीक हो गया। तो आप जब पेज नंबर 34 ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ब्लैंक्स आएंगी। आपने माइंड में ये सारा लेक्चर रखना है, और जो मैंने आपको डेज़ी के बारे में, पोएम के बारे में बड़ा डिटेल में बताया था, उसकी समरी भी आपको समझाई थी। उसके अलावा मैंने आपको कुछ उसका सलूशन खुद करके दिया था, लेकिन ये अभी आपकी जो है ना एक्टिविटी टेस्ट है, ये बहुत ईजी है। आप इसको खुद फिलअप करो और इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं वो आप लगाओ ब्लैंक्स में। अब जब आप आगे आते हो ना इसकी तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ लेक्चर के, तो यहाँ पे मैंने क्लास 6 आपके लिए एक एसे सेलेक्ट किया हुआ है जो कि माय फेवरेट टीचर या माय बेस्ट टीचर के बारे में है। तो यहाँ पे आप अपने बेस्ट टीचर के बारे में लिखोगे। मुझे आप जो है ना 150 वर्ड्स का ऐसे लिख के बताओगे। और मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि क्लास 6 अभी आपकी क्लास को इतनी छोटी क्लास नहीं है कि आपको हर चीज़ डायरी पे बताई जाए या कॉल्स करके बार बार आपको इन्फॉर्म किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स की मुझे कंप्लेंट्स मिली और मुझे आई वाज शॉक्ड कि वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमने तो फर्स्ट वाले लेक्चर्स जो हैं वो लिखे ही नहीं। तो मुझे बड़ा इस चीज़ का हुआ शौक लगा कि इतना लंबा टाइम हो गया है। अभी तो ऑलमोस्ट मेरा कोर्स आपके साथ कंप्लीट होने वाला है। अभी मैंने हार्डली आपको 4-5 और लेक्चर्स में मैं जो है कंप्लीट करा दूँगी ये आपका फर्स्ट टर्म का कोर्स। तो इसमें बड़े अच्छे जो स्टूडेंट थे क्लास के, जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि अच्छे स्टूडेंट, जो अच्छी ग्रेडिंग करने वाले स्टूडेंट, उन्होंने मुझे जब इस तरह से कहा है कि उनको जो है कुछ लेक्चर्स उनके मिस हुए और अब वो क्या करें, आपके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो ग्रुप है हमारा कॉलेज का उस पर अवेलेबल है। और जो आपके लेक्चर्स अगर रह गए हैं, लाइक अगर आपका फर्स्ट लेक्चर रह जाता है, सेकंड रह जाता है, तो आप उनको छोड़ दो, आप अगला तो काम करो ना। अब ये तो नहीं कि अगर आपके 1 या 2 लेक्चर्स रह गए तो आपने अगली जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो सारे लेने छोड़ दिए, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप ऐसा करो कि बकाया जो लेक्चर्स हैं वो लिखो, सारे अपनी कॉपीज़ पे लिखो इनको। मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ कि आप अपनी कॉपीज़ पे इनको लिखो। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, आप लोगों ने मुझे इस तरह का फीडबैक दिया कि मैं अभी आपको ये खुद समझा रही हूँ कि आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है। तो ये जो थर्ड पार्ट है ना लेक्चर का, इसमें आपका एसे है। मैंने आपको सिलेबस में जस्ट एक एसे दिया हुआ था, दैट वाज अबाउट द नेशनल हीरो, अवर नेशनल हीरो और कायदे आज़म, वो एक एसे था। लेकिन जो अभी आपका मैंने ये सेकंड एसे दिया है, इसका मकसद ये है, ये भी आपका इंक्लूडेड है सिलेबस में, इसका मकसद ये होगा कि आपके पास ऑप्शन आ जाए 2 एसेज की। ठीक है। तो माय बेस्ट टीचर के बारे में जब आप लिखते हो ना, तो आपको पता है कि कॉलेज में या क्लास में स्कूल में आपके बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीच कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली हर टीचर जो है वो आपके लिए काबिल एहतराम है। आप अच्छे तरीके से टीचर्स की कोशिश होती है, हर सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके साथ, और उनकी कोशिश ये होती है कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन जो है ना, एक टीचर होता है हर स्टूडेंट के लिए जो एक बेस्ट टीचर होता है या उनका फेवरेट टीचर होता है। तो आपने यहाँ पे उन टीचर के बारे में लिखना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए मैम तहमीना जो हमारी हेड मिस्ट्रेस है उनका नेम खुद लिखा है। आप चाहे तो ये अच्छे तरीके से ये मैम तहमीना के बारे में आप सारा जो है बेस्ट टीचर के बारे में आप अपनी हेड मिस्ट्रेस के ऊपर बड़ा अच्छा सा आप लिख सकते हो इस पर। तो यहाँ पे मैं आपको अभी समझाने लगी हूँ। देयर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल बट आई लाइक मैम तहमीना वेरी मच। शी इज़ द हेड मिस्ट्रेस ऑफ आवर स्कूल. She is very nice and kind lady. She teaches us English. We enjoy her class as she explains everything in a proper way. तो ये पहला पैराग्राफ जो था, इसमें आपने उनका मेथड ऑफ टीचिंग बताना है और टीचर का नेम मेंशन करना है। और उनकी जो सेकंड पैराग्राफ होएगा ना, इसमें आपने उनकी पर्सनैलिटी का डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो, शी ऑलवेज वियर्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस, शी इज़ अ स्मार्ट लेडी, काइंड लेडी, देयर आर सो मैनी नीडी स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, these students get admissions by our kind headmistress. She is very regular and punctual. She always come to school well in time.
और फिर उसके बाद आप जब एंड में करोगे ना इसको ख़त्म, तो आप इसमें लिखोगे कि वी रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, मे शी लिव लॉन्ग। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से कंक्लूड करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग आ जाएँ रिकैप ऑफ द लेक्चर की तरफ। रिकैप ऑफ द लेक्चर में आपको पता है कि मैं सारी लेक्चर का एक आपको जो है ना वो जिसको कहते हैं थीम सा बता देती हूँ, लाइक जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ 2-3 मिनट्स में। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्लास 6 क्या किया है, हमने इसमें लर्न किया है स्टोरी द यूनियन स्ट्रेंथ के बारे में, फार्मर और उसके सन्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि फार्मर ने किस तरीके से स्ट्रॉज को कलेक्ट किया और जंगल से कलेक्ट करके लाया, और फिर उसने अपने बेटों को 1 बाय 1 एक एक स्ट्रॉ को तोड़ के ये बताया कि जब आप वीक होते हो, आप में यूनिटी नहीं होती, इत्तेफाक नहीं होता, तो आपको जो है वो तोड़ना, ब्रेकअप करना कितना इजी होता है। फिर अगेन उसने एक बंडल की फॉर्म में जो है अपने बेटों को ये समझाया कि यूनिटी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जो है एक अच्छा सा लेसन हमने लर्न किया इस स्टोरी से। मॉरल हमने इसका देखा कि यूनियन इज स्ट्रेंथ इसका मॉरल है। और अगर आप नेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो सेम इज़ द केस विद द नेशन। अगर एक नेशन के लोग आपस में मुत्तहिद नहीं है तो फिर इस तरीके से होता है कि बैरूनी जो ख़तरात होते हैं वो बढ़ जाते हैं और इन्वेजन्स हो जाती हैं। ठीक है, आउटर इन्वेजन्स होती हैं, एक्सटर्नल इन्वेजन्स हो जाती हैं, इन्वाइडर्स जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो सिमिलरली सेम इज़ द केस विद द नेशंस। तो ये यूनिटी जो है वो हर लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हमने स्टोरी के उसमें देखा। अगेन फिर हम आए सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर की तरफ, जिसमें हमने कुछ अपनी टेक्स्ट बुक का जो है सोल्यूशन एक्सरसाइजेस किए। वो सोल्यूशन एक्सरसाइज जो थी वो बेसिकली पेज नंबर 34 पे दी हुई थी, और उसमें क्लास 6 में आपको बताती चलूँ कि आपने मेरे साथ जो आपका लास्ट लेक्चर हुआ था ना इंग्लिश का, उसमें मैंने आपको द डेज़ी पोएम के जो है वो सोल्यूशन आपको खुद सॉल्व करके दिया था। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये बहुत इजी है, इसमें आपने जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स लगाने। आपका काम ये बनता है कि आप इस लेसन को एक अच्छी सी रीडिंग दोगे, इसको बुक को सामने रख के पढ़ोगे, आपको हर चीज़ जब समझ आ जाएगी, मैंने ऑलरेडी ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को ना, तो आप इसको रिवाइज़ करोगे तो आपको बहुत इजीली जो है ना ये ऑप्शन डी जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, जो थर्ड पार्ट था ना लेक्चर का, उसमें हम लोग आ गए एक और ऐसे की तरफ, जो कि ऐसे आपको मैंने दिया माई फेवरेट टीचर और माई बेस्ट टीचर के बारे में। तो मैंने आपको ये बताया कि आपके कॉलेज में डिफरेंट टीचर्स हैं जो अपने अपने लेवल पे अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं। वो आपके लिए कितने मोटिवेटेड होते हैं, कितना वो हार्ड वर्क करते हैं, और किस तरह से उनकी कोशिश होती है सारे टीचर्स की कि वो आपको किस तरह से जो है बॉटम लाइन से ऊपर तक, पीक तक लेके जाएं। ठीक है, तो सारे टीचर्स हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एट द सेम टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हर स्टूडेंट के लिए एक टीचर होता है जो उसका फेवरेट होता है। तो ये जो बेस्ट टीचर का या माई फेवरेट टीचर का ऐसे होता है ना, इसमें आप अपने बेस्ट टीचर का नेम लिख सकते हो, उनकी क्वालिटीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उनका मोड ऑफ वर्किंग आप डिस्क्राइब कर सकते हो, वो किस तरह से क्लास में एंटर होते हैं, वो लेक्चर किस तरह से देते हैं, वो किस तरह से गपशप करते हैं आपके साथ, और किस तरीके से आपकी क्लास को पूरा साल जो है पूरा सेशन वो लेके चलते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे जो हमारी काइंड लेडी हैं, जो हमारी रिस्पेक्टेबल हेड मिस्ट्रेस है मैम तमीना, उनके बारे में लिखा है। वो सारा आपने देखा मेरे साथ इस लेक्चर में कि किस तरीके से हमने उनकी बेस्ट टीचर की क्वालिटीज़ को देखा, फिर उनका जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि उनका जो बिहेवियर होता है वो नीडी स्टूडेंट्स के साथ कैसे होता है, और जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, गुड टीचर वही होता है जो कि पूरी क्लास को एज अ होल लेके चलता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हर क्लास में जो है डिफरेंट किस्म के बच्चे बैठे हुए होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं उनको ज़रा समझ लेट आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर हम टीचर्स जो हैं वो लेक्चर को बजाय इसके कि हम कंप्लीट इंग्लिश में दें, असूलन तो ये होना चाहिए कि इंग्लिश की जो क्लास है वो कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बिल्डअप करने के लिए इंग्लिश में ही होना चाहिए लेक्चर। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के जब माइंड में आता है तो फिर टीचर कहता है कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में अपने लेक्चर को डिलीवर करती हूँ। ठीक है,
तो ये तो था आज का लेक्चर। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। और इसके साथ साथ में आपको वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि आपने सारा काम जो है, जो मैंने एक्टिविटी बुक का भी कराया वो भी करना है, और ये सारा काम आप अपनी नोटबुक्स पे लिखें। कुछ बच्चों की मुझे कंप्लेन आज बस जो है रिसीव हुई है, मौसूल हुई है, जिसमें देवर आस्किंग कि मैम हम ये पेजेस पे करें काम। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि वाई यू आर सेइंग कि हम पेजेस पे करें, यू शुड मेक योर नोटबुक, ठीक है।